Dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Today, now we will go for lesson number 9, and that is about the method of contouring. In previous lecture, we have seen that what is contour, the line joining the point of equal elevation, that is called as contour. It is an imaginary line. So it represents the topography of the ground, and on any contour map there are number of close contour lines are there, and every contour line has a unique value of RL or elevation. That is, value is given, for example 97 meter. Then other contour line is having value 98 or 99 or 100 or like that, whatever it may be there. So the difference between the RL of the two contour line, that is called as contour interval. So by this type of contour interval we can prepare the contour map of the different ground. So in that way we have seen already that there are different types of characteristics of contour. तो contour हमारे क्लोज contour है और उसकी जो contour लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे है और उसकी वैल्यू जो है RL की, वो वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पर हिल है, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते. Similarly, concentric close contour lines are there and the RL value is decreasing inside. तो इसका मतलब वहाँ पे खड्डा है या पॉन्ड है. और widely spaced contours, they are showing the flat ground or normal ground, or the close space contours, they are indicating the steep slope. In that way, there is sometimes there is a vertical cliff, or there is something an overhang, or there are different features are there. So all these type of characteristics of contour and how the use of contour map is to be done, that already we have seen. Now from the contour map we can draw the profile or cross section of the ground, and we can plan our structure, whatever infrastructure development we have to carry out. So for that purpose, suppose मुझे भी कहीं तो भी एक कंस्ट्रक्शन करना है और बहुत बड़ा ग्राउंड का इलाका है, और यदि उसका काउंटर मैप मुझे यदि बनाना है तो मुझे उस फील्ड में जाके वहाँ पे लेवलिंग सर्वे करना पड़ेगा. सो दैट लेवलिंग सर्वे मीन्स द सिंपल प्रोसीजर इज देयर कि हमको एक इंस्ट्रूमेंट एक जगह पे रखना है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑटो लेवल, और अलग अलग जगह पे स्टाफ रख के अलग अलग पॉइंट्स के RL हमको निकाल लेना है. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज डन, दैट इज कॉल्ड एज कंटूर सर्वे और लेवलिंग फॉर कंटूर मैप. तो इस प्रकार का लेवलिंग सर्वे करके हम लोग जो भी फील्ड सर्वे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कंटूरिंग. सो हाउ हम लोग कंटूर कैसे पता करते, उसके लिए फील्ड में हम लोग फील्ड वर्क क्या करते. सो इन दिस लेसन वी विल अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंटूर सर्वे, दैट इज मेथड ऑफ स्क्वायर, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेडियल लाइन मेथड. सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड हियर. द फर्स्ट, ऑल दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, क्योंकि इससे हम लोग एक्चुअल कंटूर लाइन पर का कोई पॉइंट, उसका RL, उसको हम लोग इंडिकेट नहीं करते या उसका हम लोग सर्वे नहीं करते. सो द पॉइंट्स ऑफ इक्वल RL कहाँ पर है ये हमें पता नहीं है पहले, बट वट एवर द वेरियस एग्जिस्टिंग ग्राउंड इज देयर, सो वी कैन टेक नंबर ऑफ पॉइंट्स and on that each point we will take the staff reading, and for that staff reading we will calculate the RL. So that is the preliminary work required. So for that there is different methods are established. So here in in the indirect method of contouring, levels are taken on the some selected point and their levels are reduced, means we are calculating the RL. Thus in this method the horizontal control is established first, and then levels of the points are found, and after locating the point on the plan, reduced level are marked and contour lines are interpolated. So here the important thing is we are carrying out interpolation for marking the contour line. तो हमें पहले नोन पॉइंट के ऊपर स्टाफ रीडिंग लेके उसका RL निकालना है. वो सारे जो नोन पॉइंट है उसका RL वहाँ पे लिख देना है जगह पे मैप के ऊपर, और वो पॉइंट्स जिनका RL मालूम है उनका इस्तेमाल करके इंटरपोलेशन करके दूसरे पॉइंट्स हमको पता करने पड़ेंगे जिसके लिए आपने कुछ भी RL डिसाइड किया होगा. सो द पॉइंट ऑफ नॉन RL वी हैव टू आइडेंटिफाई बाय इंटरपोलेशन.
इसका मतलब हमको काउंटर लाइन पे के जो पॉइंट है वो डायरेक्टली नहीं मिल रहे हमको. So we are identifying them by indirect method, and that is by interpolation. So for that purpose we have to carry out the contour survey. So there are three methods are given for carrying out the contour survey. So first is method of square, then second is method of cross section, and third is radial line method. So one by one we will understand all these methods of contouring. So here as shown in this is the method of square. So what it says, in this method the area is divided into the number of squares. अब मुझे 2 एकड़ का खेत का सर्वे करना है, तो मैं 2 एकड़ के खेत में कुछ तो भी डिस्टेंस डिसाइड कर लूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मेरा 20 मीटर है. सो 20-20 मीटर इंटरवल के ऊपर ये जो पूरा खेत है उसके ऊपर मैं ऐसे पॉइंट्स ले लूँगा. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो आई विल एस्टेब्लिश द पॉइंट. तो पूरे खेत के अंदर मुझे पहले क्या करना है, स्क्वायर, इमेजिनरी स्क्वायर तैयार करना है. तो स्क्वायर तैयार करने के लिए मुझे ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगने वाले हैं. तो मेरा जितना बड़ा खेत है या जितनी बड़ी ज़मीन है, जितना बड़ा ग्राउंड है, वो ग्राउंड के ऊपर आप इस प्रकार से 20 मीटर इंटरवल, 30 मीटर इंटरवल या 10 मीटर इंटरवल या जो भी आपने डिसाइड किया होगा, जितना बड़ा एरिया है सर्वे का और कितना क्लोज काउंटर लाइंस आपको चाहिए, उसके हिसाब से आपको ऐसे स्क्वायर के ग्रिड में आपको ग्राउंड पे बहुत सारे पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे. सो दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ स्क्वायर्स वी आर आइडेंटिफाइंग. ऑल ग्रिड पॉइंट्स आर मार्क्ड कॉमनली यूजिंग द स्क्वायर ऑफ 5 मीटर बाय 5 मीटर और 20 मीटर बाय 20 मीटर. तो ये हर एक जगह पे आपको पेक ठोकनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पर आप एक पत्थर रख सकते चूना लगा के. सो इन दैट वे इन द फील्ड, एक्चुअल फील्ड में आपको 5 मीटर बाय 5 मीटर के डिस्टेंस पे या 10 मीटर बाय 10 मीटर के ग्रिड लेके या 20 बाय 20 की ग्रिड लेके सारे पॉइंट्स को आपको पहले मार्क करना पड़ेगा. उसके लिए आप वो पॉइंट के पत्थर रख सकते, या उसके ऊपर चूना डाल सकते, मार्किंग कर सकते, या प्लस की साइन चूने से मार्क कर सकते, या वहाँ पे पेक ठोक सकते, यहाँ पर एरो ठोक सकते. सो दैट स्टाफ रखने के टाइम पे आपको सारे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए कहाँ कहाँ पे मार्क किए. तो जो एरिया का सर्वे करना है उसके अंदर हमको मेथड ऑफ स्क्वायर करना है, तो वो पूरे एरिया को हमको इक्वल साइज के स्क्वायर में पहले बांटना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको रेंजिंग करना पड़ेगा, चेनिंग करना पड़ेगा, क्रॉस टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डिस्टेंस मेजर करके आप पूरे पॉइंट्स ग्रिड में वो पूरे ग्राउंड के ऊपर मार्क कर सकते. सो दैट इज रिक्वायर्ड. देन द लेवल ऑफ ऑल ग्रिड पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश बाय लेवलिंग. अब हर एक पॉइंट के ऊपर आपको आरएल लेना है, स्टाफ रीडिंग लेना है. तो मैं जनरली क्या करूंगा, यदि मेरा ये पूरा एरिया एक ही जगह से कवर होता है तो मैं यहाँ पे कहीं तो भी मेरा लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन ले लूँगा. सो दिस इज लेवल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन 1. और यहाँ पे लेवल रख के फिर हर एक पॉइंट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ स्टाफ रखूँगा, फिर रीडिंग लूँगा, यहाँ स्टाफ रखूँगा, फिर रीडिंग लूँगा, यहाँ स्टाफ रखूँगा, फिर रीडिंग लूँगा, यहाँ स्टाफ रखूँगा, फिर रीडिंग लूँगा. ऐसा करके मुझे पहला रीडिंग तो कोई तो भी बेंच मार्क पे ले लेना है. कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं परमानेंट लोकेशन का, या नॉन आरएल का पॉइंट ले लो बेंच मार्क करके. सो फर्स्ट रीडिंग यू विल टेक ऑन द बैक साइड, यहाँ पर ले लेंगे. और उसके बाद में सारे रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड के आएंगे, और ये सारे पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपको नंबरिंग भी करना है कागज़ के ऊपर. सो इस टाइप का आपको एक रफ स्केच कागज़ पे बनाना पड़ेगा पहले. उस पर अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ का खेत है तो 2 एकड़ के हिसाब से कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं अपने, उतने रेक्टेंगल पूरे मार्क करने पड़ेंगे. और वो हर एक पॉइंट के ऊपर नंबर दे देना पड़ेगा, और वो नंबर के हिसाब से फिर ग्राउंड पे आपको इंस्ट्रूमेंट रख के स्टाफ रीडिंग लेना पड़ेगा हर जगह पे. अब हर जगह पे स्टाफ रीडिंग लेने के बाद में पूरे इसके स्टाफ रीडिंग हो गए, तो फिर आप उसको फील्ड बुक में बराबर एंटर करेंगे. तो पहला रीडिंग आएगा बेंचमार्क में, चेनेज 0 रहेगा. फिर दूसरा रीडिंग आएगा, बाद में सारे रीडिंग आपके इंटरमीडिएट साइड में रहेंगे, और आखिरी का रीडिंग कोई तो भी 4 साइड का रहेगा. समझ लो यहाँ का रीडिंग आखिरी का लिया आपने, तो वो 4 साइड में रहेगा. और वो पूरे पॉइंट्स के स्टाफ रीडिंग से आपको आरएल निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आइदर बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और बाय राइज एंड फॉल मेथड. सो ऑल दैट आरएल्स वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट. अब आरएल आपने कैलकुलेट कर लिया, मीन्स लेवल ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश बाय द लेवलिंग.
देन द ग्रिड स्क्वायर इज प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग शीट। फिर आपको वो जो रफ स्केच है वो लेके बैठना पड़ेगा और एक ड्राइंग शीट के ऊपर सुटेबल स्केल लेके, जो भी 2 एकड़ का आपका जमीन है समझ लो, उसका आपको काउंटर मैप बनाना है, तो उसका जो भी साइज और शेप होगा उसको आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है विद द सुटेबल स्केल। और बनाने के बाद में जो आपने रफ स्केच के ऊपर ये ग्रिड बनाई थी, ऐसी ऐसी ग्रिड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वहां पे पेंसिल से आपको विद द स्केल, प्रॉपर स्केल बराबर मार्क करना पड़ेगा। तो जो भी आपका रफ स्केच है, ये पूरा ऐसा स्क्वायर वाला ग्रिड वाला ऐसा का ऐसा रफ स्केच फेंट वाले लाइन से पेंसिल से ऊपर आपको वहां पे बन जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे। सो ऑन द ड्राइंग शीट यू हैव टू प्लॉट ऑल दीज ग्रिड, पूरे स्क्वायर की ग्रिड आपको मार्क करनी पड़ेगी टू द सुटेबल स्केल। सो ऑन दैट अब आपने ये कर लिए। सो रिड्यूस लेवल ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स आर मार्क्ड। अब आपने फील्ड बुक में हर एक पॉइंट का आरएल निकाला हुआ है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है स्केच में, तो ये पॉइंट का आरएल आ गया 102.8, फिर इसका आ गया 102.6, फिर इसका आ गया 102 है समथिंग, यहाँ पे आ गया 101.1, यहाँ पे आ गया 100.6, 99.7, 99.4। ऐसा जो पॉइंट का जो भी आरएल आया होगा वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको हर एक पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। एट एवरी लोकेशन वी विल राइट डाउन दैट। अब आपका ये ग्रिड का डिस्टेंस आपका यहाँ पर 20 मीटर है, तो आपको ये डिस्टेंस आपने सुटेबल स्केल से 20-20 मीटर लेके मार्क भी किया है बराबर। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा कर लिया। अब यहाँ पे हमको इसके बाद में काउंटूर लाइंस हमको ड्रॉ करनी है इंटरपोलेशन से। सो बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटरपोलेशन वी हैव टू मार्क द काउंटूर लाइंस के पॉइंट्स कौन से वो मार्क करने पड़ेंगे। अब ये काउंटूर लाइंस के पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे वो हमको यहाँ पे देखना है। सो फॉर दैट वी विल सी दैट हाउ दैट कैलकुलेशन कैन बी डन। तो अब हमें मुझे क्या है कि जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 101.4 वाला पॉइंट है और यहाँ पर है 99.2 का, तो 99 मीटर वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा 99.5 का। ये मेरा आरएल कौन सा है 100 का है, तो 100 का पॉइंट कहाँ पे आएगा ये मुझे पता करना है। तो मुझे इतना डिस्टेंस ये पता करना पड़ेगा पहले। यानी कैसा है कि ये जो पॉइंट है इसका आरएल है 99.2 और ये पॉइंट है 100.4 का, तो 100 मीटर आरएल का, क्योंकि ये लाइन मुझे 100 मीटर की काउंटर लाइन निकालना है, तो 100 मीटर की काउंटर लाइन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी आरएल ऐसे है जिनके दोनों के बीच में 100 आ सकता है, वहां पे 100 मीटर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट जैसा यहाँ पर या ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे आ रहा है वो मुझे पता करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस यदि निकालना है तो मुझे मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी एक्चुअल में क्या है, ये जगह पे यदि हम लोग इमेजिन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास में जगह कैसी है, सो 100.4 और 99.2 ये है समझ लो हमारे पास में। सो हियर एक्चुअली हमारा जो डिस्टेंस है 20 मीटर का वो इतना है और ये 100.2 है और ये है कितना था हमारा, सो तो हम लोग यहाँ पे 99.2 और 100 ये वाला देख रहे हैं हम लोग, 100.4 एंड 99.2। सो 100.4 एंड 100.4 एंड 99.2। तो एक्चुअली ग्राउंड अभी इतने पार्ट में ऐसा है। एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हमने लिया है 20 मीटर का। तो ये 20 मीटर के लाइन के ऊपर मेरा इधर का पॉइंट जो है वो 100.4 पे है और इधर का जो पॉइंट है वो मेरा 99.2 पे है। सो दिस इज एट 99.2 और ये है 100.4। अब ऐसा यदि मेरा ग्राउंड स्लोपिंग है तो ये ग्राउंड स्लोपिंग रहेगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा 100 मीटर पे रहेगा, 100 मीटर पे रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है वो मुझे निकालना है। तो मैं इसके लिए अभी इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन लिखने के लिए मुझे जो काउंटर का पॉइंट लेना है, सो आरएल ऑफ द काउंटर क्या है मेरा, आरएल ऑफ
काउंटूर मैंने 100 डिसाइड कर लिया, यानी 100 मीटर की जो RL है उसका काउंटूर मुझे पता करना है। तो वो काउंटूर मेरा 99.2 और 100.4 के बीच में रहने वाला है कहीं तो भी। अब वो बीच में कहाँ रहेगा तो वो पता करने के लिए मुझे मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया। सो दिस इज द लाइन ऑफ 100 मीटर और 100.4 वाली लाइन ऊपर है, 99.2 के नीचे है। तो ये मेरा ग्राउंड का प्रोफाइल हो गया। अब ये ग्राउंड का प्रोफाइल ये 100 मीटर के लेवल को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट्स के मेरा इतना डिस्टेंस हो गया x। सो दिस डिस्टेंस इज x। यहाँ पे मेरा ग्रिड का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर की ग्रिड है मेरी। तो अब इधर मैं ये जो इधर का डिस्टेंस है ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। दिस डिस्टेंस इज 20 माइनस एक्स। तो अब मेरे पास में ये एक स्केच तैयार हो गया जहाँ पे मेरे पास में ये लाइन है और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये ऐसा डिस्टेंस है और ये इधर का डिस्टेंस है x और ये इधर का डिस्टेंस है 20 माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस 20 मीटर का है और ये इसका RL है 100 मीटर और इसका RL है 99.2। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया 0.8 का और ये इसका RL यहाँ पर 100 है और इधर का पॉइंट जो है वो 100.4 पे है। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा 0.4 का। तो ये एक्चुअली मेरा ग्राउंड लाइन है। तो ये ग्राउंड लाइन 100 मीटर के RL को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट मुझे पता करना है, तो वो x डिस्टेंस मुझे पता करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर मैं x डिस्टेंस के लिए मैं ये x डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ये डिफरेंस यानी मेरा यहाँ पर ये है मेरा 100.4 माइनस 100 ये वाला यानी 0.4 का डिस्टेंस। इसके लिए डिस्टेंस कितना है मेरा x का, इसको इक्वल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 100 माइनस 99.2 यानी ये वाला 100 और 99.2, इसके लिए डिस्टेंस अपना 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम लोग x निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो एक्चुअली हियर यहाँ पर हो जाएगा ये 0.4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स। अब ये 20 इधर आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई करके। सो 20 इंटू 0.4 ये हो गया 8 माइनस 0.4x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू ये हो जाएगा 0.8x। अब ये x वाला टर्म उधर चले जाएगा तो इधर 8 बचेंगे और उधर हो जाएगा 1.2x यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1.2 बराबर है। सो 8 डिवाइडेड बाय 1.2 तो ये आ गया 6.67। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले पॉइंट से 6.67 मीटर पे मुझे 100 RL का पॉइंट मिलेगा, 100 RL का पॉइंट मुझे मिलेगा। सो ये x डिस्टेंस आपको पता करना होता है। सो ऑल दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, यानी इतना डिफरेंस इतने डिस्टेंस के लिए तो इतना डिफरेंस इतने डिस्टेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना है वो हमको यहाँ पर निकालना है। सो ये x हमने निकाल लिया, तो अब हम लोग ये x का डिस्टेंस का इस्तेमाल करके हमको कहाँ पर पॉइंट आएगा वो हम लोग वहाँ पे पता कर सकते। सो हियर यू कैन मार्क दैट ये 100.4 से हमारा जो डिस्टेंस आ गया अभी वो आ गया 6.67 का। तो मैं मेरे यहाँ से 6.67 पे एक पॉइंट मार्क करूँगा जिसका मेरा RL हो गया 100। फिर दूसरा 100 का पॉइंट मेरा ये वाला है तो मेरा एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर यहाँ पर भी 99.8 है और इधर 100.3 है, तो ये दोनों के बीच में ये यहाँ से कितनी दूरी पे 100 का RL रहेगा वो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिर इंटरपोलेशन से। फिर इसके आगे जाऊँगा मैं तो यहाँ पर 99.5 है और यहाँ पे 100.1 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहेगा 100 मीटर के RL का वो मुझे फिर से इंटरपोलेशन से करना पड़ेगा। ऐसा करके मैं हर एक 100 मीटर के हर एक दो पॉइंट के बीच में जहाँ पर 100 मीटर का RL आ सकता है उसके लिए मैं इंटरपोलेशन करूँगा और वो x डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा इधर से या इधर से, जो भी इधर से या इधर से और उतना डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर अब ये वाले पॉइंट को यदि हम लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर मुझे यहाँ पर मैं ये यहाँ से ज्वाइन करके मेरी ये एक काउंटर लाइन हो गई यहाँ पे बराबर। तो ये काउंटर लाइन हो गई मेरी 100 मीटर के RL के लिए।
So this contour line is for 100 मीटर। तो इसी प्रकार से अब ये 100 का लाइन फाइंड किया मैंने, तो ये 100 की लाइन के लिए यहाँ पर इंटरपोलेशन करना पड़ा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ इसके बीच में भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि 100 की लाइन कौन से दो RL में से पास हो सकती है, उन दो पॉइंट के बीच में आपको अब यहाँ पर 99.8 और 100.100, तो ये वर्टिकल लाइन पर आपको वो इंटरपोलेशन करना पड़ेगा और ये पॉइंट से इतना डिस्टेंस कितना x वो निकालना पड़ेगा। ऐसा हर जगह पे आपको ऐसा डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर इतना वाला, यहाँ पर ये डिस्टेंस, यहाँ पर तो यही हो गया लाइन, ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस इंटरपोलेशन से निकाल के ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे और उनको ज्वाइन करके आपको एक लाइन मिल गई 100 मीटर RL की। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर हमने ये 101 की लाइन कहाँ से जा रही, तो वो हमने इंटरपोलेशन करके पता निकाला। तो यहाँ पे 100.6 और 101.1 इसके बीच में का डिस्टेंस कितना रहेगा 100 मीटर के RL का 101 का, तो 101 के लिए कितना डिस्टेंस रहेगा वो निकाला, ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर वैसे यहाँ पर गया x डिस्टेंस निकाला, तो ये डिस्टेंस से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर ये 101 का पॉइंट यहीं आ गया मेरा तीसरा, फिर ये यहाँ पर एक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना डिस्टेंस कितना है x का वो निकालूंगा मैं, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे। यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना डिस्टेंस कितना है वो निकालूंगा और ऐसा करके ये पॉइंट ज्वाइन करूँगा तो 101 की काउंटर लाइन मुझे मिलेगी। तो इस प्रकार से इंटरपोलेशन करके हमको ये ऐसे ग्रिड का ड्राइंग बना के हर एक पॉइंट का RL कैलकुलेट करके वो लिखना पड़ता और कौन से दो RL के बीच में जो डिज़ायर RL है हमारा काउंटर लाइन का वो पास हो रहा है उसको पता करके उसके बीच में इंटरपोलेशन का कैलकुलेशन करने का है। तो आपको ये x डिस्टेंस मिलेगा, तो वहाँ पे उतनी दूरी पे पॉइंट मार्क कर देंगे और ये सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे, सो दे विल इंडिकेट द काउंटर लाइन ऑफ 100 मीटर RL। सो इन दिस वे वी हैव टू कैरी आउट द सर्वे इन ए ग्रिड। अलग अलग ग्रिड पोजीशन पे हम लोग RL निकालेंगे स्टाफ रीडिंग लेके और वो RL के ऊपर से फिर इंटरपोलेशन करके इस प्रकार का ड्राइंग निकालेंगे, तो एक आपको काउंटर मैप मिलेगा। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ काउंटरिंग, दैट इज मेथड ऑफ स्क्वायर। Similarly, other method is there. Now here this method we are using, it is called as method of cross sectioning. तो अभी ऐसा थोड़ा सा एक आधा लंबा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड का सर्वे करना है हमको और उसके काउंटर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा प्लाट मेरा ग्राउंड लंबा ही है, मेरा थोड़ा सा खेत लंबा है, तो खेत में से मैं ऐसी एक सिंपल एक लाइन ले लूँगा, स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर 20-20 मीटर के ऊपर ऐसे पॉइंट ले लूँगा। सो आई विल मार्क दिस पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे मुझे यहाँ पे पत्थर या पेग लगा के पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे 20-20 मीटर इंटरवल पे, और फिर क्रॉस टाप का इस्तेमाल करके मुझे उसको ऐसी परपेंडिकुलर सेट करना है। क्रॉस टाप का इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर सेट करूँगा मैं ऐसे अलग 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 अलग। तो बहुत सारे परपेंडिकुलर आपको हर एक पॉइंट में से परपेंडिकुलर लाइन सेट करनी पड़ेगी इस प्रकार से, और ये परपेंडिकुलर लाइन पे फिर आपको 3, 6, 9 मीटर 12 मीटर पे पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट ले लो आप 3, 6, 9 और 12 मीटर पे, या कहीं पे आपको जितने पॉइंट लेना है वो हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पे पेग ठोक के मार्क करना पड़ेगा ग्राउंड में। तो ये सारे पॉइंट्स जैसा प्रोफाइल लेवलिंग में कर रहे हैं हम लोग रोड के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मार्क करने पड़ेंगे, यहाँ पर पेग ठोकनी पड़ेगी या पत्थर रखना पड़ेगा या चूने से मार्किंग करना पड़ेगा, चूना पाउडर से। तो ऐसे खूब सारे पॉइंट्स आपके ग्राउंड में पहले मार्क हो जाएंगे, और फिर आपको इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखो कहीं भी आप एक जगह पे, और फिर कहीं तो भी बेंच मार्क का रीडिंग ले लो, और बेंच मार्क का रीडिंग लेने के बाद में फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको स्टाफ रख के रीडिंग लेना पड़ेगा। सो हियर इन दिस मेथड द क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल बाय लेवलिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ दोज पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश। अब यहाँ पे भी जैसा आपने मेथड ऑफ स्क्वायर के अंदर किया था उसी प्रकार से हर एक पॉइंट का RL अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सब जगह पे लिखना पड़ेगा। और फिर कौन से दो पॉइंट में से 100 के RL की लाइन जा रही, ये लाइन कहाँ से जा रही, तो ये दोनों के बीच में जा रही, तो फिर दोनों के बीच में से ये x डिस्टेंस कितना रहेगा, ये इंटरपोलेशन करके अपने को निकालना है, फिर ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसा फिर ये वाले के बीच में ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर ये इधर के पॉइंट के बीच में ये पॉइंट मिलेगा। ऐसा हर जगह के पॉइंट में आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, और फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको काउंटर मैप मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सीधे स्ट्रेट लाइन में कुछ सर्वे लाइन एस्टेब्लिश करके उसको क्रॉस सेक्शन में भी अलग अलग पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर सकते। सो दैट इज द क्रॉस सेक्शनिंग हो गया। उसके ऊपर कंटिन्यूस पर्टिकुलर इंटरवल पे पॉइंट्स फिक्स कर दिए, हर एक जगह पे स्टाफ रीडिंग लिया,
फिर हर एक का RL कैलकुलेट किया, फिर वो RL के हिसाब से ड्राइंग शीट के ऊपर फिर से ऐसा मैप बनाना पड़ेगा आपको, एक लाइन बनानी पड़ेगी, फिर उसको परपेंडिकुलर सारी लाइन बनानी पड़ेगी, और जो जो डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लिए थे वो पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे, फिर वहाँ पे RL लिखने पड़ेंगे, और RL लिखने के बाद में फिर इंटरपोलेशन करके दोनों के बीच का एक्स डिस्टेंस कितना है, जहाँ पे डिजायर RL आपको चाहिए वो निकालना पड़ेगा, और ऐसे पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो उतने एरिया का आपका काउंटर सर्वे का मैप आप बना सकते हो। तो पहले वाले मेथड में हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर ग्रिड बना के ऑब्जर्वेशन लिए थे, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन और क्रॉस सेक्शनल लाइन ऐसा ग्रिड बना के या ऐसा अरेंजमेंट करके हमको रीडिंग लेना है, ताकि बाकी इंटरपोलेशन करके काउंटर लाइंस को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा यहाँ पर। सो दैट इज द अनदर मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शनिंग। देन सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव, अभी एखादे पहाड़ी का आपको को काउंटर मैप बनाना है, एखादे हिल का, तो ऐसे हिल के ऊपर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि हिल के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक सेंट्रल पॉइंट ले सकते हैं हमारा, और उसी सेंटर पॉइंट के ऊपर हम लोग हमारी लेवल भी रख सकते, और ये सेंटर के पॉइंट में से पहाड़ी के नीचे के तरफ से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा अलग अलग एंगल में 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 में, ऐसे अलग अलग एंगल से आपको नीचे नीचे लाइन ले सकते हैं आप। यानी मैं पहाड़ी पे खड़ा हूँ और इधर से एक सर्वे लाइन ऐसी गई, एक इधर से आई ऐसी और इधर गई, तो अलग अलग एंगल से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल से मैं ऐसी अलग अलग रेडियल लाइंस मुझे एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी पहाड़ी के ऊपर। या फिर आप नहीं पहाड़ी के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं, प्लेन ग्राउंड पे भी आप ये सर्वे कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको सर्वे करना है, तो इसके पहले हमने देखा था ग्रिड सेट करने का, उसके बाद में आपने लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन और परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन की ग्रिड बनाई थी हमने। अभी यहाँ पर हम लोग रेडियल अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो एक सेंटर पॉइंट में से नंबर ऑफ सर्वे लाइन आपकी थ्रू आउट हो गई पास, और हर एक लाइन के ऊपर आपने पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर पॉइंट ले लिए, और यहाँ पर स्टाफ रख के आपको रीडिंग लेना है, और फिर रीडिंग लेके फील्ड बुक में भरना है उसको, और फिर हर एक पॉइंट के RL कैलकुलेट करना है। जब RL कैलकुलेट हो जाएंगे तो फिर ड्राइंग शीट के ऊपर ऐसे ही सेम अपने को एक पर्टिकुलर स्केल से ये लाइन और उतने एंगल में दूसरी लाइन ये सब बनानी पड़ेंगी, और उतने ऊपर स्केल लेके ये पॉइंट भी मार्क करने पड़ेंगे ड्राइंग शीट के ऊपर, और ये पॉइंट मार्क हो गए कि फिर सबके RL इसके लिखने पड़ेंगे, ये पॉइंट का RL इसके नीचे, इसका नीचे, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, हर एक पॉइंट के नीचे उसका RL लिखना पड़ेगा। जब RL हो जाएगा, अब अपने को समझ लो 106 के RL की लाइन निकालना है, तो 105 और 107 इसके बीच में कहीं तो भी आने वाला है, तो यहाँ के बीच के आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस x कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से कितने दूरी पर आएगा ये हम लोग पता कर सकते हैं, और ये पॉइंट आपका मार्क हो गया तो ये एक पॉइंट हो गया। ऐसा फिर और 106 का पॉइंट कहाँ आ सकता है, ऐसा करते करते 106 का पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहा है इसको इंटरपोलेशन से आइडेंटिफाई करते जाओ, और इस प्रकार से ये लाइन ज्वाइन करो, तो ये एक RL बन गई। फिर ऐसे ही दूसरे लाइंस के लिए भी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम लोग रेडियल लाइन का इस्तेमाल करके भी काउंटर मैप बना सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑल्सो वी कैन यूज समटाइम्स। तो हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन है कि यदि काउंटर मैप के लिए सर्वे करना है तो आप ग्रिड बना के करो, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन लेके करो, या फिर रेडियल लाइंस एस्टेब्लिश करके फिर से करो। आइदर वे कोई भी मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो डायमेंशंस आपने फील्ड में लिए पॉइंट्स फिक्स करने के लिए, वही डायमेंशन को नोट करके रखना पड़ेगा रफ स्केच में, और उसके हिसाब से उसका स्टाफ रीडिंग उसी जगह पे लिखा जाना चाहिए, और उसके हिसाब से सिस्टमेटिक एंट्री होनी चाहिए फील्ड बुक के अंदर, और वहाँ पे एक्यूरेट RL निकालने चाहिए। फिर वो RL निकालना हो गया कि वो RL की एंट्री बराबर जो पॉइंट का RL है उसी पॉइंट के ऊपर लिखा जाना चाहिए ड्राइंग शीट के ऊपर, और फिर दो RL के बीच में इंटरपोलेशन करके जो डिजायर RL है उसका पॉइंट कितने दूरी पर आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये प्रोसीजर नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिपीट करनी पड़ेगी अलग अलग RL के लिए। और फिर ऐसे एक जैसे RL वाले पॉइंट्स आपने ढूंढ लिए तो उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसी नंबर ऑफ काउंटर लाइंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इन दैट वे वी कैन प्रिपेयर द काउंटर मैप, एंड these three methods generally we are using for preparing the counter map. So here, we have seen method of section and radial line method and method of grid. So in this way we have completed this chapter of leveling survey.
So this was the last topic. Thank you for watching this video series. Thank you.